Hey, hello everyone, I'm back again, and this time for biology practicals. See, in biology practicals, specifically to say, the most important thing is the Viva portion, as well as the okay, everything is most important, never mind. So, I'll just share the screen and I'll show you from where we are gonna study that thing, right? And so, I'll directly share this thing. Oh, no, no, actually, I will share this thing practical content, this, right? And now, we just open this. Right. So in the first place, we are having this thing, right? I'll just open a little better. Right. One second, I just want to check if I'm clear in this terms. Uh, where is? Okay, never mind. See, this is our live thing, right? Huh. So, hmm. Right. So for slide making diagrams, we are having different features of mitosis. In each cycle division, two daughter cells are formed from the parent cell. The cell is also known as the equational cell division because basically this division is called the equational division because the chromosome number in the parent cell and the daughter cell. Once again, where it been okay is the same, and in plants mitosis leads to the growth of vegetative parts of the plant like root tape, stem tape, etc. Segregation and combination do not occur in this process as compared to meiosis, in which though these things happen, right? So before entering mitosis, the cell spends a period of its growth under interphase. It undergoes the following phases when interphase. It is G1 phase, S phase, and G2 phase. G1 phase is the period of synthesis of before the synthesis of DNA. S phase is the phase during which DNA synthesis takes place, and G2 phase is the phase between the end of the DNA synthesis and the beginning of the prophase. Right? So now prophase, the chromosomes to condense to form compact chromosomes. Centriole divides and moves to opposite poles. Mitotic spindles begin to form. Okay. So this spindle forming, and this is the centrioles, and these are the chromosomes which are being shown. This is the centromere and this is nuclear envelope. See, basically this is 11th क्लास में जो अपन पढ़ते हैं वो वाला पोर्शन, बट इसमें ये अपन को प्रैक्टिकल्स में जरूर पूछा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ द प्रैक्टिकल थिंग, राइट? नाउ मेटाफेज में अपन बात करते हैं तो मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स व्हिच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर. Spindle fibers attached to kinetocost. Small dish-shaped structures at the surface of the centromeres of chromosomes. Chromosomes move to the spindle equator and get aligned along the metaphase plate. This is what we already know. The plane of alignment of chromosomes at metaphase is referred to as the metaphase plate. So there is a center, this is chromosomes, the spindle fibers, ester formation, chromatids. This is the metaphasic plate, which is being shown over here. Cytokinesis, the division of cytoplasm into two new cells, overlaps with the final stages of mitosis. Cytokinesis in plant cell can be said as the cell plate formation से जो होता है, और उसमें क्लीवेज होता है एनिमल सेल के अंदर. Cell plate formation starts at the center of the cell and grow outward towards the lateral walls. सो ये ऐसे लेटरल वॉल्स की तरफ, ये जो लेटरल वॉल्स है इसकी तरफ ये ग्रो करता है सेल प्लेट पूरा. एंड जो ये इसमें क्लीवेज होता है वो पेरीफेरी से शुरू होके अंदर जा रहा है. देखो ये पेरीफेरी से इसके अंदर वो हो रहा है, बेसिकली क्लीवेज वो हो रही है, ठीक है, सेल्स फॉर फॉर्मेशन और यहाँ पे सेल्फ प्लेट फॉर्मेशन. एंड तो इसमें यही मेजर डिफरेंस हो जाता है कि अंदर से बाहर हो रहा है, ये बाहर से अंदर हो रहा है. सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस होती है कि डिप्लॉयड दिस प्रोड्यूसेस डिप्लॉयड डॉटर सेल्स with identical genetic complement. It helps in the repair of cells, especially in lining of the gut and the blood cells. So mitosis में उन cells में mitosis की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे अपन को germinative काम नहीं करना है, right? Germinative as in sorry like the germ cells वाला या फिर जो अपना reproductive वाला part है. Okay, merismatic division in apical and radial gamete results in the growth of continuous growth of plants. growth वगैरह करने के लिए जो अपनी primary growth होती है. Anaphase होता है centromere of chromosome splits and the two daughter cells, the two daughter chromatids separate, right? And this is one of the important things. Now comes the next thing, that chromatid moves towards the opposite poles, and depending upon the position of centromere, chromatids are of V, J, I shape और L shape भी होते हैं. तो इसे चार टाइप की शेप्स होती है, ऐसे तीन बता के खत्म नहीं कर देना है. यहाँ पे तीन लिखी हुई है, कोई नहीं, बट अपन चार भी बोल सकते हैं. सिस्टर क्रोमैटिड्स अगर हमने एक्स्ट्रा बोल दिया तो इसमें हमारा कोई लॉस नहीं होगा. Cytoplasm, plasma membrane, ester, and this is spindle fibers, and this is sister chromatids. Telophase chromosome cluster at the opposite spindle poles decondense and lose their individuality. Nuclear envelope assembles around the chromosome clusters, and nucleolus is Golgi complex and ER freeform.
राइट, नाउ कम्स द नेक्स्ट थिंग। सो दिस इज आवर डायग्राम, दिस इज वेरी क्लियर डायग्राम, ठीक है। सब चीजें मोर और लेस क्लियर है कि ये आई शेप है, ये वी शेप लग रहा है देखने में, ये एल शेप लग रहा है और ये जे शेप लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तो चार क्रोमोसोम की शेप दिखा रखी है, और ये एनाफेज के अंदर सबसे ज्यादा अच्छे से दिखता है, इसलिए उन्होंने एनाफेज के अंदर ये बात करनी होनी चाहिए थी, बट ठीक है, whatever. Now comes precautions. The side slide should be warmed gently, much above the flame of the spirit lamp. So ये much above the like, ऐसा नहीं डायरेक्टली इसको like कुछ भी ब्लास्ट होने से प्रिवेंट करने के लिए आपको उसको ज्यादा ऊपर रखना चाहिए, जेंटली करनी चाहिए कोई भी चीज, आपको ऑब्वियसली सबको पता ही रहती है। एसिडो का माइंड चेंज होता है, इसको फिल्टर करना चाहिए यूज करने से पहले, एंड देयर शुड बी नो एयर बबल इन द स्लाइड। कोई एयर बबल नहीं होना चाहिए स्लाइड के अंदर, ये बात ध्यान रखें। सो व्हाट आर द थ्री थिंग्स आर, एसिडोकार्बाइन डाई को जो होता है फिल्टर करना चाहिए बिफोर यूजिंग, बबल एयर बबल नहीं होना चाहिए कोई भी, और तीसरी अपन ने क्या बोली थी, अभी अभी जस्ट बोली थी, वार्म करना जेंटली मच अबव द स्पिरिट लैम्प। देन कम्स द नेक्स्ट थिंग, सेल वॉल। ये अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है, न्यूक्लियोलस दिख रहा है, यहाँ पे इसी साइटोप्लाज्म होता है, ये अर्ली प्रोफेज दिख रहा है। अब इनको आगे बाहर के साइटोप्लाज्म से मतलब नहीं है, अंदर की तरफ से भी मतलब है। क्रोमोसोम दिख रहे हैं, मेटाफेस अपन के अंदर यहाँ पे ये प्रोफेट ये दिख रही है अपन को प्लेट। ये डायग्राम्स अपन को ऐसे बना देने डालने, ठीक है। सेल वॉल है, क्रोमोसोम्स क्रोमैटिड्स है बेसिकली ये तो, और ये स्पिंडल फाइबर्स है, और लेट एनाफेज। और यहाँ पे अपन बात करते हैं लेट प्रोफे ओके 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 ओके, ये ऐसे 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 था, ठीक है। तो यहाँ पे लेट प्रोफेस की बात बताई हुई है। लेट प्रोफेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे है। जस्ट सी वंस, ये यूट्यूब का लाइव जो चल रहा था अपना, ठीक है। अ, और mm, hmm. So there is this dot of nuclei, and this. One second, is my arrow visible or not? The arrow which I'm using is visible or not? Okay, it's bad if it is not visible, man. I was showing my arrows. It's not two-page view. Hey. Okay, never mind. See, like this is early anaphase, and then early anaphase में daughter chromosome were there, and this is spindle fibers. And ये late anaphase में क्या हो गया, यहाँ पे chromatids convert हो गए। ये daughter chromosomes जो होते हैं वो chromatids के अंदर convert हो गए। यहाँ पे ये इसका टूटना शुरू हो गया इसमें बीच में से, daughter cells है अपने पास, और उसके बाद daughter nuclei बन गए अलग अलग से, cell plate बन गई, और यहाँ पे बीच में जो separation है वो बढ़ गया, ये टेलोफेज स्टेज हो गई। अब हम बात करते हैं अबाउट जेनेटिक्स चैप्टर। जेनेटिक्स चैप्टर में डीएनए के एक्सपेरिमेंट के लिए डायग्राम पूछा जा सकता है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसके लिए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बीच में होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऐसे, ठीक है। तो ये अपन के पास 5-3 ये दिख रहा है, एटी एटी के बीच में 2 बॉन्ड्स है, हाइड्रोजन और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है जिसमें अपन नाइट्रोजनस बेस के साथ अपन ने ग्लूकोज को बॉन्ड किया। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में अपन ने फॉस्फोरस के एसिड वाले जो फॉस्फोरिक एसिड है उसके साथ अपन ने ग्लूकोज को बॉन्ड करा हुआ है। यहाँ पे अपन पी दिखा देंगे सिर्फ सिंपल तो भी चलेगा, काम तो उसमें भी। तो यहाँ पे पी सी एच एच है, और यहाँ पे पेंटोस शुगर है, ए जी है इसके ऊपर इस पोजीशन पे, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन है यहाँ पे, राइट। ऐसा कुछ कुछ लग रहा है, शायद फोर्थ पोजीशन होना हो, देख लेना है, कुछ क्लैरिफाई चेक कर लेना। प्रैक्टिकल 2, aim to determine, okay, why was this practical given in the above one? अच्छा, कि अगर डीएनए का स्ट्रक्चर पूछ लिया तो बता सकते हो। अगर अब बात करते हैं अबाउट प्रैक्टिकल 2, अपन एक बार ये भी देखते हैं कि अपनी जो प्रैक्टिकल फाइल है, जो एक्चुअल हमारी बोर्ड की प्रैक्टिकल फाइल है, उसके अंदर ये किस तरह से दिखती है, ठीक है। 1 सेकेंड। Aim to determine the population density of plants at a place by the quadrant method. तो quadrant method से ये वाला बहुत ही इजी रहता है हमेशा से, क्योंकि मटेरियल रिक्वायर्ड इसमें मीडिया स्केल चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए होती है, नेयर चाहिए होता है, हैमर चाहिए होता है, मेजरमेंट टेप चाहिए होती है, पेपर चाहिए होता है।
ठीक है, मेजरिंग और टेप को इन्होंने अलग अलग कर दिया। ठीक है, मेजरिंग टेप चाहिए, हैमर चाहिए, नेल्स चाहिए। नॉर्मल अपन एक्सपेरिमेंट में ये सब नहीं कर रहे होते थे, बट इसमें अपन को ये सब करना है, मतलब इसे मेंशन करना है कि ये चीजें अपन को चाहिए पेपर। प्रिंसिपल क्या है अपने पास? एवरेज नंबर ऑफ पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द पॉपुलेशन डेंसिटी। एवरेज नंबर ऑफ पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। इसकी मेथड क्या होती है? चूज अ नियरली एरिया of square field of size 2 meter and fix the iron nails at the corners of the square field. Now tie a string and ready the square field. So what are we doing actually? We are having that choose a nearly area of square field of size 2 meter. तो अपन ने 2 मीटर स्क्वायर का लाइक दो मीटर की अपनी एक वो लिया, स्क्वायर फील्ड लिया है, और वो नियरली मतलब कुछ भी दे सकते हो, एंड फिक्स द आयरन नेल्स एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, और उसके चारों तरफ आयरन नेल्स से इसको फिक्स कर दिया। एक स्ट्रिंग को टाई करा और रेडी किया स्क्वायर फील्ड को। स्ट्रिंग को टाई किया मतलब फेंसिंग कर दी इसकी चारों तरफ। नाउ डिवाइड द स्क्वायर फील्ड इनटू 10 स्मॉल स्क्वायर्स बाय टाइंग स्ट्रिंग्स एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर्स। अब ये इसको 10 स्मॉल स्क्वायर में डिवाइड कर दो जो स्क्वायर फील्ड थी, और उसमें 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे अपन ने स्ट्रिंग को टाई कर देना है। एक स्क्वायर, इसमें जो स्क्वायर बनता है उसको क्वाड्रेट कहता है। रिकॉर्ड द नेम एंड द नंबर ऑफ ऑल स्पीशीज प्रेजेंट इन द स्क्वायर्स, राइट? Record the number of all species present in the squares. Population density of plants in the two quadrants can be identified by the following formula. Total number of plants in the quadrant studies, total number of quadrants studied. उस प्लान उसमें कितने क्वाड्रेट्स हैं? उसमें एक प्लान में कितने क्वाड्रेट क्वाड्रेट है? एक क्वाड्रेट में कितने प्लांट्स हैं? प्लांट्स पर क्वाड्रेट इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स स्टडीड इज डेंसिटी। थोड़ा गलत सा लग रहा है देखने में। अभी के लिए चलो, मेरे को थकान होने लग रही है। अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बाकी का पार्ट, वैसे भी कोई है तो है नहीं।